Okay. Classification. Nomenclature. आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। ठीक है ना? तो आइडेंटिफिकेशन कब तुम एक ऑर्गेनिज्म, जो एक ऑर्गेनिज्म दिया गया है उसको तुम आइडेंटिफाई करोगे, है ना? सपोज एक ऑर्गेनिज्म गिवन है, गिवन ऑर्गेनिज्म, यू विल आइडेंटिफाई इट, ओके, फिजिकली और बायोलॉजिकली, by seeing the structure or by seeing its biological some features. Physically and biologically you will go for identification process. Biologically identification. Okay, now this identification actually, student, is helping for classification and nomenclature. Try to understand one thing, student. If no identification is there, if you could not identify a plant, how will you classify it? And you, if you could not classify it, how will you nomenclate it? है ना? ये तो सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। पहले उसको तुमको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा प्लांट या फिर एनिमल है। तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं स्टूडेंट, वी कैन से दैट आइडेंटिफिकेशन हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन हेल्प for classification and nomenclature. Okay, student, classification and nomenclature. Okay, now classification means, student, you are dividing the organism into categories or subcategories. That means organisms are divided under categories or subcategories. Okay, now how will you classify an organism, student? On the basis of similar or dissimilar characteristics of organism. Okay, so classification is based on similar and or dissimilar characteristics of organism. And classification, how will you classify? I've written in the middle column, student, but actually what should be the follow? What should you follow? Firstly, you will identify an organism. After identifying it, you are giving a nomenclature to that organism, and only after that you can classify an organism. So this is the procedure, students. So classification generally receiving help through identification and nomenclature. मैम सिमिलर और डिसिमिलर की बात क्या लिखे है? Characteristics. Through identification and nomenclature. So classification help is receiving help from where, student? First step is identification and second step is nomenclature. Now this one, nomenclature. Okay, student, nomenclature means you are giving name. Okay, student, you are giving given name to different organism. Now students, you can give two types of name. Okay, you can give
two types of name. One is common name. मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? हम विजिबल है। विजिबल है। बायोलॉजिकल नेम, ठीक है ना? वेट अ मिनट स्टूडेंट, जस्ट वेट अ मिनट। तो what could be common name, student? Potato. Potato is a common name. Just one example. Scientific name: Solanum tuberosa. Now, nomenclature technique, student. Nomenclature. Technique, two types, student. Binomial, trinomial. देखो इतना क्लियर है, पहले मुझे ये बोलो फिर मैं आगे जाऊंगी। देख लो एक बार, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, है ना? इतना क्लियर है सबको? तो ठीक है, हाँ बोलो, कुछ बोलना है? क्लियर है इतना सबको? मैम थोड़ा ऊपर कीजिए ना। ये तो लास्ट लेक्चर है। Common name can be given by common name can be given by local people in their local language. Now, drawback of common language. You cannot give common name to each and every organism. सबको तो तुम common name नहीं दे सकते हो क्योंकि वो Yes, लोकली दे रहे हो, है ना? अब सपोज उड़ीसा का ही अगर कोई लोकल लैंग्वेज दोगे तो वो सिर्फ उड़ीसा के प्लांट्स और एनिमल्स के लिए ही दोगे ना। व्हाट अबाउट तमिलनाडु, व्हाट अबाउट वेस्ट बंगाल एंड अदर स्टेट? So this is one of the major drawback. It could not, common name could not be provided to each and every organism. Why, student? Because communication will not be possible because of lack of communication. Because of lack of communication. Whatever I'm saying, just I'm writing the things so that you can get back to you because you are not in class. I know that, and you are not getting time to write down all those things. क्लास में क्या होता है, हम लोग बोलते हैं, बच्चे लिख लेते हैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स। ऑनलाइन क्लास में पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आई ट्राई एज मच एज आई कैन गिव यू द नोट्स फॉर्म। चलो एक एग्जाम्पल देख लो, रोज कई एक एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है ना? अब हिंदी में रोज को बोलते हैं गुलाब, बंगाली में बोलेंगे गोलाप, तमिल में इसको बोलते हैं रजोपा। मैम एवरी ऑर्गेनिज्म के बाद Every organism, because of lack of communication, because of lack of communication. So these are the disadvantage of common name. Okay, state wise it will be different, student. So what scientist has done, they have given scientific name.
From here arises the concept of scientific names. Okay. Now, the scientific names are given by biologists. They are given by biologists. These are given by biologists. Okay. Now, they are given by biologists, but they have agreed to the rules and criteria. Okay. They have agreed to the rules. Now, what are the rules that I will discuss later? They are agreed to the rules and criteria, students. Now, this biological name is universal. Universal means everywhere accepted. You go to France, there also scientific name of potato is Solanum tuberosa. There also scientific name of hibiscus is China rose hibiscus. So that is the thing, universal and applicable. Now within this, there are two student nomenclature. All of you know that just now I told you. Binomial nomenclature and trinomial. Trinomial is not in your syllabus, but still I will discuss some points regarding trinomial which are important for your NEET exam, student. So now first we will see contribution of the scientists, their book and their year. All these things are important, student. Okay? All these things are important. So contribution, scientist, book, year. चलो अब एक एक करके देखते हैं क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले प्रपोजल आया था बायनोमियल के लिए, है ना। तो प्रपोजल ऑफ बायनोमियल, scientist, the name of the scientist is Caspar Bokin. Okay, Caspar Bokin. Book, the name of the book is Spinax. Year 1623. चलो भाई, प्रपोजल तो अब आ गया बायनोमियल नोमेनक्लेचर का प्रिंसिपल। ये तुम लोग जानते हो, प्रपोजल तो सुना नहीं होगा, प्रिंसिपल तो जानते हो तुम लोग, मैं जानती हूँ। Principle of binomial nomenclature was given by Carolus Linnaeus. All of you know that. Carolus Linnaeus. The book, student, किसी को भी बुक का नाम पता है? ईयर मैं बता दे रही हूँ 1751। बुक का नाम पता है किसी को भी? बोलो। Philosophia Botanica. This is the name of the book in which Carolus Linnaeus has given about the principle of binomial nomenclature. First usage, पहली बार यूज किया गया था इसको। अभी तो जस्ट प्रिंसिपल बना, अभी तक यूज थोड़ी ना किया गया है। फर्स्ट यूजेज सेम कार्लस लीनियस ने किया। जिस बुक में उन्होंने किया था उस बुक का नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। प्रीवियस ईयर का नीट का क्वेश्चन उठा के देख लो, इतना क्वेश्चन मिलेगा इस सबसे के ऊपर। दिस फिलोसोफिया बोटानिका स्पीसीज प्लांटेरम का कंसेप्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्पीसीज प्लांटेरम, एकदम ये सब कॉमन क्वेश्चन है मतलब। तो फिर 2 साल बाद उन्होंने इसको अप्लाई किया 1753 में। प्लांटेरम है मतलब इस बुक में सिर्फ तुमको प्लांट मिलेंगे, पढ़ना कभी 5900 प्लांट्स के बारे में, है ना। तो ये एक्चुअली फर्स्ट टाइम स्टूडेंट वैलिड पब्लिकेशन हुआ। फर्स्ट टाइम क्या हुआ बोलो? वैलिड पब्लिकेशन हुआ। तो एनिमल के लिए भी तो देखना है ना। चलो सेकंड यूजेज, ऑब्वियसली कार्लस लीनस ने ही किया था। इस टाइम बुक का नाम भी उन्होंने चेंज किया, स्पीसीज नेचुरा लिखा उन्होंने। अब इसमें उन्होंने क्या किया, ये उन्होंने किया था लगभग बहुत टाइम बाद किया था 1958 में। इसमें उन्होंने 4226
एनिमल स्पीसीज के बारे में बताया। तो ये फर्स्ट वैलिड पब्लिकेशन फॉर एनिमल, फर्स्ट वैलिड पब्लिकेशन। मैम बोलो ये बेटा 1958 में लिखा गया बुक है। बोलो। मैम जो खुशी सेकंड यूजेस लिखी हैं स्पेसिस नेचर का, वो हाँ बोलो बोलो। 1958 में लिखा हुआ है। हाँ 1958 लिखा है मैंने, सॉरी कुछ गलती हुई, 1758 होगा एक्चुअली, 19 नहीं होगा, नहीं नहीं 19 कैसे होगा। मैम ये दोनों बुक के राइटर एक ही थे, फर्स्ट कैरलस यूजेस। लीनियस, हाँ 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 दोनों कैरलस लीनियस। बोलो, इतना में से किसी का कोई डाउट है क्या? इतना क्लियर है तुम लोगों को? क्लियर है ना? चलो आगे जाते हैं। ना 5 कोड्स, नोमेनक्लेचर के लिए 5 कोड का यूज किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं 5 कोड का नाम लिख रही हूँ और इसको तुम लोगों को अच्छे से याद करना है। 5 कोड्स है ना, और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम्स, नंबर 1 फॉर प्लांट, ICBN, फुल फॉर्म ऑफ ICBN, इंटरनेशनल नेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। नंदनी ना, वेरी गुड नंदनी, वेरी गुड, नेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। पढ़ी थी पहले नंदनी 11 में ही या पहले? मैम 11th में। लिविंग वर्ड पढ़ा है पहले तुमने? यस मैम, थोड़ा थोड़ा। चलो अच्छा बात है। फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स, फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स, ओके, ICNCP। बोलोगी तुम नंदिनी इसका फुल फॉर्म? इंटरनेशनल कोड फॉर nomenclature of इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। for nomenclature of cultivated plants, same here. Good, good Nandini. Third one, for animals, ICZN, मैम हम बताएं इसका? इंटरनेशनल, हाँ बोलो बोलो, कौन इंटरनेशनल बताएगा? नेहा, कोड ऑफ निशा निशा, जियोलॉजिकल इंटरनेशनल कोड, इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कोड बोलो, और ऑफ जूलॉजिकल जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। देखिए नोमेनक्लेचर। लॉजिक समझ में आने से अपने आप आंसर निकलता है, वेरी गुड निशा। जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है ना, लॉजिकल नोमेनक्लेचर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बैक्टीरिया के लिए ये भी बोल लोगी, मुझे पता है, ICNB क्या होगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। बस बन गया, और क्या? और नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, लास्ट है वायरसेस के लिए, ICTV। बोलो। इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। इंटरनेशनल कमिटी फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। मैम कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। हाँ कमिटी फॉर नहीं,
to इनमें से देखो ये सारा यूकैरियोट है एक्चुअली, एनिमल प्लांट ये तीनों एप्लीकेबल है तुम्हारे यूकैरियोट्स के लिए। बैक्टीरिया है सिर्फ प्रोकैरियोट्स के लिए। क्लियर है ना? चलो नाउ नेक्स्ट आई विल डिस्कस विथ यू बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब एक बात सुन के बहुत ज्यादा शॉकिंग लगेगा, जैसे बायनोमियल नोमेनक्लेचर के हम लोग जो रूल्स पढ़ाते हैं वो तो 3 या 4 ही है, लेकिन एक्चुअल जो रूल्स है ना स्टूडेंट, या फिर उनके जो आर्टिकल्स होते हैं वो 76 है। यस 76 बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पे तुम्हारा 76 रूल्स या फिर आर्टिकल्स है। चलो मैंगो से स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक नेम मैंगी फेरा इंडिका। तो क्या क्या रूल्स है बोलो। अच्छा पहले मैं बता देती हूँ, ये फर्स्ट पार्ट इसको बोलते हैं, फर्स्ट पार्ट है ना उसको हम लोग बोलते हैं जीनेरिक नेम। जेनेरिक नेम सेकेंड पार्ट इट इज मैम, कॉल्ड स्पेसिफिक स्पीसीज। नेम, स्पेसिफिक Specific. स्पीसीज एपिथेट। एपिथेट भी बोलते हैं, हाँ एपिथेट वर्ड भी यूज करते हैं। चलो अब सम टाइम क्या होता है, आफ्टर दिस साइंटिफिक नेम नेम ऑफ बायोलॉजिकल ऑथर इज ऑल्सो एब्रिविएटेड, but it should not be underlined. Suppose this was given by Linnaeus, so I'm writing like this, Linnaeus, Linnaeus, short form, but it should not be underlined. Now rules, what are the rules? The first word of genus, the first word of genus, it should be in capital. It should be in capital. First word of species, it should be in small letter. Both genus and specific name should be underlined. Suppose you are typing it in computer, how will you underline? No. In printed form, you will write in italics. You will write in italics. In handwritten form, you are separately underlining it, and in printed form, you will write in italics. Now, what are the limit? Minimum and maximum limit, it should be set. Minimum and maximum. Minimum is 3, maximum is 12. 3 is minimum, 12 is maximum. So, students, these are the rule of binomial nomenclature. Ma'am, Tell me, excuse me, ma'am. tell me, Ma'am, Pallavi. yes, ma'am. Biological name is same as scientific name. Yes, biological means name means I'm talking about scientific name. Okay, ma'am. Okay. Now. Yes, tell me. Yes, मैम Sophie? मिनिमम और मैक्सिमम क्या है? Oh, that is the limit. Word limit. Word limit. Let me write it here. Word limit है ना? Like this. अब ऐसा थोड़ी ना है कि तुम एक पैरा के हिसाब से साइंटिफिक नेम बनाओगे, तो देयर शुड बी वर्ड लिमिट ना। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में ये है कि मिनिमम इज 3 एंड मैक्सिमम इज 12। मैम बोलो निशा। मैम आप ये जो मैंगो का साइंटिफिक नेम लिखे इसमें तो 15 आ रहा है वर्ड, मैम लेटर। अच्छा वर्ड है इसमें, ओके हम समझ गए। हाँ बाबू। इसका क्या है मैम, हम इसको वर्ड ले। ठीक है चलो ये हो गया। और कुछ पूछना है तो पूछ लो एक बार, फिर मैं जाऊंगी पढ़ाने। और कुछ? ठीक है चलो मैं नेक्स्ट आती हूँ। नाउ एनीथिंग एल्स स्टूडेंट? एनीथिंग एल्स? निशा कुछ बोलना है? मैम इससे पहले वाला स्लाइड एक बार और ओपन कीजिए तो ये वाला जिसमें- देखो, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम, ये ना। एक सेकेंड रुकिए। एक सेकेंड रुको थोड़ा, एक साथ
ये ना कर्सर भी ना कभी कभी देखो मैम हो ऐसे गया। लोग चलो है ना। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी है ना। ये बोल के फिर मैं डायरेक्ट ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में चली जाऊंगी। प्रिंसिपल्स ऑफ chalo I'm giving you one example fungi. Suppose two scientific name I am giving you for a fungi. One is Albugo candida. Okay student, Albugo candida. Another one Cystopus. Cystopus candidus. Both are the scientific name of a common fungi, same fungi. Now that means two scientific name is there. Which will be given priority? Which will be given priority? Any one of you? Any one of you? Any one of you? Second one. Tell me, Nandini. Ma'am, Cytopus candidum. This one. Why? Now let me explain. मैम बस ऐसे ही लगा कि उसको दे सकते। नहीं ऐसे नहीं बोल रहा है, ऐसे ही कुछ भी कैसे बोल दोगे? हाँ, रीजन होना चाहिए। साइंस वन सब एक्सपेरिमेंट प्रूफ एंड ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन इन्फरेंस सब बोल रहा है। ऐसे ही कैसे कुछ भी बोल दोगे? ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। These are the two examples, but priority wise this will be given priority. There should be reason, because this scientific name is given the first valid application. Suppose a plant is given first valid application, and after that again this scientific name was suggested for this particular organism. So we can say, student, that it is synonym. It is synonym for Albugo candida, but it is actually the scientific name. Clear with this? That means we can say now that how will you give the principle? Principle means principle of recognizing the first valid application of the name for that plant or animal. Clear with that? Clear with that? The first valid name. Yes, ma'am. Okay. Now this one. No. Next is trinomial nomenclature. So with the name you can मैम एक identify. बार रिपीट कीजिए ना। Oh हाँ, बोल रही हूँ श्वेता, बोल रही हूँ। Principle of priority means two organisms. Suppose two are giving scientific name. So this albugo is given priority. Why it is giving priority, student? Because the first valid publication was given for Albugo candida, and after that the same name Cystopus candidus was suggested by biologist for this Albugo candida. तो प्रायोरिटी वाइज पहला प्रायोरिटी किसका गया? एल्ब्यूगो कैंडिडेट का गया, क्योंकि पहला वैलिड पब्लिकेशन उसका ही मिला था, है कि नहीं? तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, फर्स्ट वैलिड एप्लीकेशन of a name of a plant or animal. This is the law of priority. आया समझ में? यस चलो चलो नेक्स्ट जाती हूँ। Now next one, trinomial nomenclature. Trinomial
nomenclature. Trinomial nomenclature. Now this concept, the concept was given by Lamarck. Now first one, second one, all of you know that. First one, second one, all of you know that. First one, second one. First is generic. Second is species, epithet. Now what about the Species. subspecies? But again there is a confusion. Nandini, remember it. सिर्फ सब स्पीसीज बोलते हैं क्या या और कुछ भी बोलते हैं? बोलो तो, और कुछ भी बोलते हैं? वैरायटी. अगेन अ क्वेश्चन, मैम Species भी बोलते हैं। मैम सब स्पीसीज और वैरायटी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मैम कब सब स्पीसीज बोलेंगे और कब वैरायटी बोलेंगे? अगर एक एनिमल के लिए लिख रही हो तो सब स्पीसीज बोलना, प्लांट के लिए अगर लिख रही हो तो वैरायटी बोलोगी. ये चीज याद रखनी, ये जनरली बच्चे भूल जाते हैं, है ना. अभी एक एग्जाम्पल देके तुम लोग को क्लियर करती हूँ मैं, ठीक है ना. चलो 3 एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है. पहला लिखती हूँ क्रो का, इंडियन क्रो, इंडियन क्रो, है ना. कॉर्वस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस. ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर हुआ. गौरिला का लेते हैं, गौरिला, 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 गौरिला. 2 प्लांट का बताया मैंने, एक और देख लो. मैम बोलो, बोलते रहो. कैबेज. मैम सब स्पीशीज में स्टार्टिंग कैपिटल होगा स्मॉल? स्मॉल, स्मॉल. सिर्फ जेनस में कैपिटल होगा, अदरवाइज सब स्मॉल. ये बात याद रखना है, ऐसे याद रखना. कैबेज के लिए, कैबेज का साइंटिफिक नेम ब्रासिका है. सब लगेगा ब्रासिका जो है, इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं. ब्रासिका ओलेरेशिया, ठीक है ना. अब यहाँ तुमको थर्ड स्पीसीज के लिए तुम ऐड करोगी. अब बताओ यहाँ पे तुम वैरायटी लिखोगी कि सब स्पीसीज लिखोगी? यू विल राइट वैरायटी. फॉर वैरायटी यू विल राइट VAR और लिख के एक डॉट दे देना. वैरायटी पूरा नहीं लिखना है, पहले अच्छे से समझो. VAR लिख के एक डॉट देना है, वैरायटी पूरा नहीं लिखना है. और फिर लिखना है कैपिटेटा. अब बोलो, अब ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर समझ में आया? यस मैम. बोलो बोलो, क्लियर हो गया ना? नो मैम. बोलो किसका नो मैम है? मैम निशा मेरा. बोलो निशा, कहाँ पे? देखो कहाँ नहीं समझ हमको में आया? कुछ समझ ही नहीं आया इसमें. कुछ भी नहीं समझ में आया? नो मैम. ठीक है, चलो मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ. ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर पहले नाम से समझो. मतलब यहाँ पे 3 पार्ट होंगे एक नोमेनक्लेचर का. क्लियर? पहला दूसरा तो क्लियर है बाइनोमियल से. तो तीसरा फिर क्या ऐड हो गया अचानक से? तीसरा जो ऐड हुआ है वो है तुम्हारा सब स्पीसीज ना. एनिमल के लिए बोलेंगे सब स्पीसीज और प्लांट के लिए हम लोग बोलेंगे वैरायटी. तो फिर वो मैंने एग्जाम्पल से बताया. जैसे इंडियन क्रो का एग्जाम्पल ले लो, कॉर्वस स्प्लेंडन स्प्लेंडर. तो कॉर्वस हो गया जेनेरिक नेम, स्प्लेंडन हो गया स्पीसीज एपिथेट. तो फिर स्प्लेंडन क्यों आया? ये स्प्लेंडन एक्चुअली उसका सब स्पीसीज है. गोरिल्ला में आ जाओ, वही जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक नेम, सब स्पीसीज नेम. ये तो 2 बताया मैंने प्लांट के लिए, सॉरी एनिमल के लिए. अब प्लांट के लिए क्या है? जैसे कि ब्रासिका ओलेरेका कैपिटेटा. तो प्लांट के लिए मैंने क्या कहा? वैरायटी के लिए हम लोग वेर यूज करेंगे, वर्ड VAR, शॉर्ट फॉर्म ऑफ वैरायटी, और वेर लिख के एक डॉट दे देंगे. तो इस तरह से मैंने बताया ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर. बोलो निशा, अब समझ में आया तुमको बाबू? मैम आप जो ये नेम लिखी है सबका, वो क्या साइंटिफिक नेम है ना? हाँ बाबू, साइंटिफिक नेम है. सब में अंडरलाइन है, नहीं दिखा तुमको? अंडरलाइन मतलब ही साइंटिफिक नेम है ना निशा. बाइनोमियल नहीं समझी थी क्या? पहली बात बताओ तो मुझे, यस बाइनोमियल मैम. समझी थी? यस मैम, समझ गए थे, समझ गए थे.
हाँ, अब ट्राइनोमियल समझ में आया देखो। यस मैम। और मैम यहाँ पे VAR के बाद डॉट क्यों नहीं, पूरा वैरायटी क्यों नहीं लिखा जाता है? बस ऐसे ही नोमेनक्लेचर में उन्होंने किया है बाबू। अब नहीं किया जाता है तो उसका बहुत रीजन हो सकता है ना। फिर बोलोगे कि मैम जेनस अगर कैपिटल से फर्स्ट वर्ड स्टार्ट करे तो फिर स्पेसिस फर्स्ट वर्ड से क्यों नहीं स्टार्ट करे, ये भी तो हो सकता है ना। तो उस यस बुक मैम। में जैसा है नोमेनक्लेचर में बस उसको ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं। आज समझ में? मैम बोलो। मैम प्लांट के नेम में हमेशा वैरायटी मेंशन करना पड़ता है, हाँ वैरायटी मतलब मेंशन वी करना आर पड़ता है। डॉट। हाँ हाँ VAR लिखते हैं, प्लांट में लिखते हैं। अब यहाँ पे एनिमल देखो, के अब नेम में नहीं एनिमल में नहीं लिखेंगे, एनिमल में नहीं लिखेंगे। अब देखो एक चीज, मैं एक और चीज बता रही हूँ। यहाँ पे एक चीज तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया कि मैम यहाँ पे स्पीसीज और सब स्पीसीज दोनों तो नेम सेम है मैम, तो इसको क्या कुछ बोलते हैं अलग से? ये क्वेश्चन आना चाहिए था हम लोग के माइंड में। देखो स्पीसीज और सब स्पीसीज दोनों का नेम सेम है, दिख रहा है? हम्म, दिख रहा है? इस तरह का, एनिमल में ऐसा है। हाँ इस तरह का अगर कोई नोमेनक्लेचर है तुम्हारे पास, ठीक है ना, अगर तुम्हारा नोमेनक्लेचर कुछ इस तरह का है, ठीक है, जहाँ पे स्पीसीज और सब स्पीसीज सेम है, इज इक्वल टू लिखा है मतलब सेम है, समझ जाओगे। इसको बोलते हैं टॉटोनिम। ऑटोनीम बोलते हैं। क्या टोटो? टोटो ना ऑटो? नंदिनी क्या बोली, टोटो बोली कि ऑटो बोली? मैम ऑटो। हाँ ऑटो, ठीक है चलो। ऑटोनीम बोलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये गोरिल्ला गोरिल्ला क्या है, एक दूसरे का ऑटोनीम है, ठीक है ना। ये ऑटोनीम हो गया, ये वैलिड है दोनों के लिए, वैलिड और बोटेनिकल एंड जूलॉजिकल एंड प्लेजर। आई होप ऑटोनिम सबको समझ आया होगा ना। फिर देखो अब एक और चीज, हाँ बोलो बोलो, स्लाइड चेंज करूँ क्या? बोलो। अच्छा ऑटोनिम फिर से बोल दूँ, तनु? तनु हो ना? हाँ देखो ये, हाँ ये एग्जाम्पल देखो पहले तुम, ये स्प्लेंडन है, ये स्प्लेंडन है, दोनों स्प्लेंडन स्प्लेंडन है ना, तो ये हो गया स्पीसीज और ये हो गया सब स्पीसीज। तो जब स्पीसीज और सब स्पीसीज सेम होता है तो इसको बोलते हैं ऑटोनिम। जब स्पीसीज और सब स्पीसीज सेम होता है इसको बोलते हैं ऑटोनिम। आया समझ में तनु? आ गया ना। चलो अब एक और चीज देखो, एक और क्वेश्चन आना चाहिए था तुम लोग के माइंड में लेकिन मैम आया नहीं। एक हाँ बोलो बोलो क्वेश्चन है। बोलो। मैम एक सेकंड, ये ऑटोनिम वाला थोड़ा ऊपर कीजिए स्लाइड। एक मिनट रुक जाओ, बोलो। मैम यहाँ पे आप लिखिए बोटेनिकल और जूलॉजिकल दोनों, लेकिन मैम प्लांट के लिए तो सिर्फ वैरायटी होता है, तो यहाँ पे सब ग्रुप में प्लांट क्यों आ जाएगा? देखो यहाँ पे तुमको समझ में नहीं आया, सब ग्रुप में प्लांट नहीं आएगा तो सब स्पीसीज मैंने लिखा है ना। एक मिनट मेरा बात सुनो पहले, मैं समझ गई तुम्हारा क्वेश्चन, तो मेरा बात सुनो पहले। इसमें बोलिए। ये सब स्पीसीज है, ठीक है ना। यस मैम। स्पीसीज और सब स्पीसीज इक्वल है, तो ये प्लांट के एनिमल के लिए हो गया। चाहो तो ब्रैकेट में फिर लिख लो कि वन स्पीसीज एंड वैरायटी इज आल्सो इक्वल। मतलब सेकंड और थर्ड पार्ट अगर इक्वल होगा तब ऑटोनिम बोलेंगे, तभी ना ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। आया समझ में? समझ में आया कि मैं क्या बोल रही हूँ? नो मैम। नहीं समझ में आया? मैम बट कैबेज के लिए तो ये रूल अप्लाई नहीं हुआ, मतलब कैबेज के कैबेज, अगेंस्ट। हाँ यस कैबेज के मैम लिए ये नहीं तो अप्लाई हुआ, लेकिन ये तीन एग्जाम्पल है जहाँ पे ट्राइनोमियल फॉलो हुआ है। तुम पहले ये बात मुझे बताओ, ये तीन ही एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है ना। यस मैम। वही मैं बोलने मांग रही थी, यहाँ पे नहीं हुआ है मैंने आगे नहीं होगा ये मैंने कहा है क्या? नो मैम। तो फिर ये चीज है। फिर एक और चीज देखो, मैं एक और बात बताना चाहती हूँ तुम लोगों को, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे आ जाओ। अब आ जाओ जेनस और स्पीसीज में आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो तो ये जेनस और स्पीसीज दोनों सेम है, दिख रहा है? यस ये मैम। दिख रहा है ना। तो इन दोनों को भी कुछ नाम दिया जा सकता है ना। यस मैम। चलो देखते हैं क्या बोलते हैं। नंदिनी पढ़ी हो ना?
जब जेनस और स्पीसीज नेम सेम होता है। नंदिनी नहीं पता। पढ़ी नहीं हो ठीक से तो कहाँ से पता चलेगा, है ना। इसको टोटोनीम बोलते हैं, ठीक है ना। जेनस नेम और स्पीसीज नेम जब सेम होगा। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, लेकिन ये बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के लिए इनवैलिड है, ये बात जानना है ना। इनवैलिड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, मतलब ये बॉटनी में हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं, ये सिर्फ जूलॉजी के लिए अप्लाई होगा। आया समझ में। तो वैलिड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये एक हो गया। और मैं बताती हूँ लास्ट बताकर मैं एक बार पूछ लूंगी डाउट तुम लोगों का, नहीं तो फिर मैं क्लियर करूंगी, ठीक है ना। होमोनिम, होमोनिम का मतलब होता है एक नेम, एक साइंटिफिक नेम अगर दो प्लांट को एक साथ दे रही हो, वन नेम। देखो यार, वन नेम है ना, नाम भी लिख देती हूँ मैं, प्रूनुस ड्यूलिस, ठीक है। वन नेम एलमंड के लिए भी दे रहे हो और प्लम के लिए भी दे रहे हो। इस तरह का अगर कोई नेम होगा तो उसको हम लोग होमोनिम बोलेंगे। अब अगर अभी भी किसी को नहीं क्लियर है तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्लियर करूंगी। बोलो, अभी भी है कोई क्या जो ये तीनों क्लियर नहीं हुआ है, ऑटोनिम मैम प्रोटोनिम तीसरा और वाला समझाइए ना फिर से। तीसरा वाला में क्या है, एक नाम, एक ही साइंटिफिक नेम तुमने दो के लिए दे के रखा है, एलमंड के लिए भी और प्लम के लिए भी, प्रूनुस ड्यूलिस, है ना, उसको होमोनिम बोलते हैं। समझ में। यस बोलो, मैम। चलो एक क्विक रिवीजन जल्दी से, आज क्या क्या करवाया है मैंने। लोग आज पढ़ने डाउट है, एक बार और मैं बोल देती तो मैं फिर कल के लेक्चर में मैं बोल दूंगी, नो इश्यू, मुझे पूछना मैं फिर बता दूंगी, मैं गुस्सा भी नहीं होती हूँ बताने से, मैं वैसे भी गुस्सा नहीं होती हूँ। तो चलो, फिर हम लोगों ने देखा आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, तो व्हाट वी हैव discussed in today's lecture, student, identification, classification and nomenclature. In nomenclature I have discussed the drawback of common name, then the contribution of the scientists, their book and their years. Okay, then I have discussed the 5 codes, then the rules of binomial nomenclature, principles of priority, trinomial nomenclature, their example, and some definition like autonym, tautonym and homonym. Okay students, with this I am ending this lecture. Thank you all of you. मैम 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 बोलो 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 बोलो, मैम हम आज ही ज्वाइन किए हैं। फिर से बोलो मुझे एक बार, मैम आज ही क्लास नाम बोलो थोड़ा सा, आज ही मिलेगा। नंदिता। यस मैम, हाँ नंदिता बोलो, क्या बोलना चाह रही हो तुम। हम आज ही क्लास ज्वाइन किए हैं तो नोट्स पहले का कहाँ मिलेगा। नोट्स पहले का मैं दे रही हूँ तुम्हें, जो मैंने पढ़ा है, ठीक है। मैम हमको भी चाहिए। आज ग्रुप में देती हूँ मैं लास्ट लेक्चर का नोट, मैंने तो कल से ही पढ़ाना स्टार्ट किया है, तुम आज ज्वाइन की हो नंदिता, मैं कल से स्टार्ट की, हम लोग का ये लेक्चर है ना। हाँ, बस 3-4 लेक्चर ही लेना है तुम लोगों का, वो अभी सर छुट्टी पे है एक्चुअली, आलोक सर, जानती हो तुम लोग, है ना, इसलिए तुम लोग का लेक्चर ले रही हूँ। तो मैं लिविंग वर्ल्ड का दे दूंगी नंदिता, उसके लिए कोई इशू नहीं है ना। ओके मैं रात तक फॉरवर्ड कर दूंगी, ग्रुप में फॉरवर्ड करूंगी, देखना समझ जाना मैम ने किया है, ठीक है ना। ओके और बाकी का नोट्स बच्चों से कलेक्ट करने का कोशिश करो, देखो किसी से अगर कलेक्ट हो जाए तो, है ना। ठीक है नंदिता, ओके। ठीक है, मैं आज तक का जो भी नोट्स है मैं शेयर कर देती हूँ, ठीक। और कुछ बोलना है किसी को तो बोलो। नो मैम। वो जो मैक्सिमम मिनिमम वाला कंसेप्ट था वो समझ में नहीं आया। ठीक है नंदिता, कोई नहीं, कल फिर एक बार बोलना मुझे, मैं एक बार बता दूंगी स्टार्टिंग से, ठीक है। ठीक है, और बोलो, और कुछ बोलना है, एनीवन ऑफ यू, नो मैम। और नो कुछ बोलना मैम। है किसी को भी। सबको क्लियर है ना लेक्चर दोनों क्लास का पूरा, सबको क्लियर है। बोलो यस मैम। श्रुति, श्रुति
और कौन है? शताक्षी है, संभवी है, प्रीति, सबको क्लियर है ना? यस मैम। आयुष, यस अनीशा, ओके गुड। चलो कोई भी डाउट होगा तो व्हाट्सएप करना मुझे, ऐसा नहीं है, व्हाट्सएप में मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ, व्हाट्सएप करना मुझे, ठीक? चलो बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय ऑल ऑफ ओके यू, मैम। थैंक ओके यू बाय मैम। Thank बाय you, बाय ma'am. बाय बाय ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।